Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So my dear students, we meet once again and we continue with the subject of secretarial प्रैक्टिस. उसके अंदर हमारा जो काम चल रहा है वो है चैप्टर 1 का, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. आज ये चैप्टर एटलीस्ट टीचिंग वाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. सो इन द लास्ट 2 लेक्चर्स हमने क्या सीखा है? वी हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या है. मैं जल्दी से संक्षेप में, मतलब समरी में सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि these were the 12 factors that determined the fixed capital requirement. कि कौन से बिजनेस में फिक्स कैपिटल कितना लगता है, उसको क्या डिटरमाइन करता है. ओके, डिटरमाइन का मतलब इसकी वजह से फिक्स कैपिटल मुझे ज़्यादा लगेगा, इसकी वजह से फिक्स कैपिटल मुझे कम लगेगा. हाँ, उसी तरह वी ऑल्सो लर्न लास्ट टाइम कि वर्किंग कैपिटल जो हर दिन के खर्चे होते हैं वो हमें कब ज़्यादा कम लगेगा. तो ये उसके फैक्टर्स थे, करीबन 10 पॉइंट थे. हमने दोनों का कुछ ना कुछ अजीब ही सही बट कोडवर्ड कर लिया था. दिस वॉज द कोडवर्ड दैट हेल्प यू रिमेंबर द फिक्स्ड कैपिटल फैक्टर्स, एंड दिस वॉज द कोडवर्ड दैट वी डिड लास्ट टाइम दैट हेल्प यू रिमेंबर द वर्किंग कैपिटल फैक्टर्स. सो टुडे क्योंकि हमने फिक्स कैपिटल उसके फैक्टर्स उसका मतलब और वर्किंग कैपिटल उसके फैक्टर्स उसका मतलब अलग अलग समझ लिया है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. वेरी क्विकली आई गो थ्रू द पॉइंट्स. कोई कोडवर्ड का यहाँ पे नखरा नहीं है, सिंपल मुद्दा है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. इफ देर इज समथिंग जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो भी हो जाएगा. सो मीनिंग, वेल, फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द बिग एसेट्स, बट वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एवरीडे. ओके, रोटी दाल बाद उसके लिए जो लगता है. नेचर जो फिक्स कैपिटल होता है, उसी मजाक मजाक में ही सही, ओके, बट कुछ लोग होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, ओके, जो कॉलेज में ना एक तरीके का रोमांस चलता है. ओके, तो 11th में, 12th में, 13th में, ओके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता रहता है. दैट डज नॉट मीन ए आई एम योर बॉयफ्रेंड, ए यू आर माई गर्लफ्रेंड, तो हम लोग शादी करेंगे. नहीं, शादी जैसे सीरियस बात नहीं होती. नहीं, बस वो कॉलेज में, ओके, वो जो क्यूट लव स्टोरी है ना, वो चलती रहती है. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक नाम रहता है. ओके, सम, नॉट एवरीबडी, येस, मैनी बडी गो
पढ़ने के लिए, ओके, एंड नॉट ये चक्करबाजी करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग क्या गलत है क्या सही है, आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पर कैसे वो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। व्हेन यू गेट मैरिड टू समवन, कहते हैं जन्म जन्म का साथ, मतलब क्या, लॉन्ग टाइम, ओ हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग टाइम, फिक्स्ड कैपिटल वो है लॉन्ग टाइम, बिजनेस में आया लॉन्ग टाइम। बट सर 11th में ना सर मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, 12th में ना सर मेरा इंटरेस्ट बदल गया, 13 में मेरा इंटरेस्ट बदल गया। अरे ये क्या है, हर साल तेरा इंटरेस्ट बदलते रहता है। हाँ सर वो वर्किंग कैपिटल सर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर सर, थोड़े टाइम के लिए देन इट चेंजेस, थोड़े टाइम के लिए देन इट चेंजेस, दैट्स द नेचर। ओके, पर्पस, फिक्स कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार। वर्किंग कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, हर दिन का जो रॉ मटेरियल होता है ना उसको खरीदने के लिए, एंड फॉर अदर करंट एसेट्स। सोर्सेस, फिक्स कैपिटल के लिए पैसे तुमको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। देखो ना, शेयर्स, डिबेंचर्स, उससे ना बहुत पैसा मिलता है। वर्किंग कैपिटल नहीं, शेयर्स डिबेंचर्स आपको बेचने का ज़रूरत नहीं है, आप जो बैंक से जाके आप एक शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो, 30 डेज का लोन, 40 डेज का लोन, 2 महीने का लोन, 4 महीने का लोन, शॉर्ट टर्म लोन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल देता है, व्हाट डज ही थिंक, सॉरी, सोच क्या रहा है वो, कि investors invest money in fixed capital hoping to make future profit. Future profit मतलब क्या, 5 साल बाद, 10 साल बाद। They think Facebook, if I'm not wrong, Amazon ने जियो में, जियो प्लेटफॉर्म्स करके, ओके, विच इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ओके, में बहुत पैसा डाला है लास्ट 1 year, lots and lots of money. Why? Because Amazon and Flipkart both know कि जियो जीते जाने वाला है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 4G, 5G, 6G, जी सब जियो लेके आने वाला है। सो दे नो, सो दे हैव पुट अ लॉट ऑफ मनी एंड दे आर थिंकिंग नो प्रॉब्लम जियो, अभी टेंशन नहीं है, हमारा पैसा तुम 5 साल बाद दो, हमारा पैसा तुम 10 साल बाद दो, लंबी रेस का घोड़ा। बट वर्किंग कैपिटल में ऐसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल में पैसा आज डाला, कल मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, पैसा आज डाला, 2 दिन में मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स द पर्पस, ओके। हाँ, रिस्क, यू सी, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन फिक्स कैपिटल, द रिस्क इज हाई बिकॉज इट इज crores and billions of rupees। तो ऑटोमेटिकली अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या, तो पैसे तो डूब जाएंगे। देखो वर्किंग कैपिटल ऐसा नहीं है, वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, वो शॉर्ट टर्म है, वो कम पैसा है, अभी कम पैसे के साथ में रिस्क ऑटोमेटिकली कम होता है। दिस इज द फर्स्ट मुद्दा ऑफ टुडेज लेक्चर, डिस्टिंक्शन बिटवीन fixed capital and working capital, because prior to this the factors that determine fixed capital and working capital has been covered up by me. Right now what am I doing is taking the new topic today and the last topic for this chapter, that capital structure क्या होता है। Well, very quickly let me first show you in text, जो text book में से है। When we talk about structure, कैपिटल तो आप बोल सकते हो पैसा होता है, मालिक का पैसा या मालिकों का पैसा या मालकिन का पैसा, डिपेंड्स, ओके। बट स्ट्रक्चर क्या होता है, वेल अगर आपने कभी कोई बिल्डिंग देखी है तो एवरी बिल्डिंग, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, इनफैक्ट आजकल जब नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, इन वेरियस सिटीज बनते हैं, तो द बिल्डर मेक्स श्योर और ट्राइज इज बेस्ट व्हाट, मेरे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग दिखना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को। टिल नाउ द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ओके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओमान मोस्ट प्रोबेबली, ओके, is going to have the next tallest building, but Dubai has said no, हम Dubai Creek Tower करके बना रहे हैं, which is supposed to be at least 1.5 kilometers in the vertical direction, मतलब जमीन से 1.5 kilometers up. So these are what structures, and everything has a different structure.
अभी ये हम लोग कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? द मनी रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी. ओ, तो ये कैपिटल कहाँ कहाँ से आता है? अभी देखो, अगर आपको एक घर खरीदना है या अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी, आपको कुछ भी ऐसा खरीदना है जहाँ पे पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? अगर अपनी जेब में पैसा कम है तो फिर मैं मम्मी के पास जाऊंगा, पापा के पास जाऊंगा, नाना नानी दादा दादी, नहीं है तो चाचा चाची मामा मामी, ओके, थोड़ा उनके पास चले जाओ. आई विल गो टू माई रिलेटिव्स. ये बड़ी फैमिली ट्री है, मैं इनके पास पहले जाऊंगा, ओके. तो ये मेरे घर वाले हैं. कोशिश करूंगा इनके पास पैसा है तो इनसे पैसे ले लो. पॉसिबल है कि अगर ये पैसा देके मेरी हेल्प करे, ये इंटरेस्ट मुझसे नहीं लेगी. पॉसिबल है. बट अगर इनसे काम मेरा नहीं होता तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? तो क्या करूंगा? तो बैंक के पास जाना पड़ेगा मुझे, बैंक के लोन के डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा और इनसे मुझे लोन लेना पड़ेगा. इफ आई रिक्वायर मनी, आई नीड टू बाय समथिंग बिग, देन आई कैन आइदर गो टू माई रिलेटिव्स विच आर द इनसाइडर्स, मतलब वो मेरे फैमिली का हिस्सा है, या आई कैन गो टू आउटसाइडर्स, मतलब बैंक. अ कंपनी डज द सेम, क्योंकि उनके पास भी इनसाइडर है आउटसाइडर है. कैपिटल स्ट्रक्चर ट्राइज टू एक्सप्लेन टू यू कि कितना पैसा इनसाइडर से लिया है और कितना पैसा आउटसाइडर से लिया है. अच्छा, इनसाइडर से क्या पैसा लेंगे? शेयर्स का पैसा, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. और आउटसाइडर्स से बोरो क्या करेंगे? मे बी लोन, बैंक लोन, डिबेंचर्स इज अ लोन, ओके. ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसको डिसाइड करना इज व्हाट इज कॉल्ड एज capital structure, and that is what is called as security mix. So please understand and remember that word कि ये security mix क्या है. well, आप जब जाते हो पानी पूरी खाने के लिए, ओके, तो पानी पूरी वाला पूछेगा ना आपसे, तुमको तीखा चाहिए कि मीठा चाहिए कि मीडियम चाहिए, दोनों चाहिए, ओके. मिक्स, ओके. कोई बोलेगा नहीं 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 मेरे को बस मीठा दो, कोई बोलेगा नहीं मेरे को जितना तीखा होता है उतना डालो, कोई बोलेगा नहीं नहीं बच्चे खाने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आप मिक्स करके दो. देखो भाई, हर एक का मिक्स डिपेंड करता है. उसी तरह हर कंपनी का सिक्योरिटी मिक्स वो कंपनी को खुद डिसाइड करना पड़ता है. शुड आई टेक, इफ आई रिक्वायर 100 रुपीज, 100 रुपया, 100 रुपीज, ओके, मैं मेरे घर वालों से कितना पैसा लूँ? शुड आई टेक 80 रुपीज फ्रॉम माई घर वाला, तो 20 रुपया फ्रॉम बाहर वाला. बट कुछ कंपनीज उल्टा करते हैं, जैसे नहीं, घर वालों से 20 लो, बाहर वालों से 80 लो. नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर थिंकिंग एंड हाउ डू यू मैनेज दैट मनी. वो जो पैसा आप ले रहे हो, नथिंग इज रॉन्ग. सर घर वालों से ज़्यादा पैसा ले, बाहर वालों का कम पैसा ले, वो तो सर अच्छा होना चाहिए ना. टेंशन थोड़ा कम है बाहर वालों के पैसे का. देखो भाई, हाउ डू यू मैनेज द मनी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है यू आर अ गुड ड्राइवर, आपके पास गाड़ी नहीं है, सो इफ यू आर somebody who can manage driving a car, okay, and you can get customers, you can take somebody's car. दूसरे किसी का गाड़ी लो, अपनी गाड़ी नहीं है, दूसरे की गाड़ी ली, क्योंकि उसने गैराज में रखा था, उसने उसके बिल्डिंग के कॉम्पाउंड में रखा था, पढ़ के सड़ रही थी. मैंने बोला यार मुझको दे दे, मैं तेरे को दिन का 500 रुपया दूंगा. अपनी गाड़ी नहीं है, अपने पास टैलेंट है गाड़ी चलाने का. सिंपल बात नहीं है. हैट्स ऑफ टू ऑल, ओके, सैल्यूट टू ऑल द ड्राइवर्स. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ओके. आप अमेरिका में जाओ, कनाडा में जाओ, वहाँ पे बड़े हाईवे आते, वहाँ पे आराम है गाड़ी चलाने में, क्रूज कंट्रोल पे जालो, जाएगी गाड़ी. इंडिया में नहीं, इंडिया में बहुत धैर्य रहना पड़ता है, ओके. धक्का स्टार्ट, धक्का स्टार्ट, धक्का स्टार्ट, ओके. बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ता है. इफ यू आर अ ड्राइवर and you take somebody's car and you tell that person मैं तेरे को 500 रुपया दूंगा दिन का, but you can make a भाड़ा of let's say 2000 rupees. सोचो 500 रुपया आपका पेट्रोल में चला गया, not a bad deal. 500 रुपया आपने दूसरे की गाड़ी का भाड़ा दिया, 500 रुपये का आपने उसमें पेट्रोल डाला और उसके ऊपर आपने 1000 रुपया कमाया. गुड. आप दूसरे का एसेट यूज कर रहे हो और अपना जेब भर रहे हो,
दूसरा भी खुश है, पेट्रोल वाला भी खुश है, सब लोग खुश है, दैट्स अमेजिंग। हाँ, तो कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसा करते हैं, वो दूसरे का पैसा लेते हैं, उनको इंटरेस्ट भी देते हैं, बट अपना भी वो जेब भरते हैं। सो नो दैट सिक्योरिटी मिक्स, हर एक कंपनी का सेव पूरी अलग रहता है, उसका टेस्ट अलग रहता है। ओके, सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मिक्स। अपना पैसा कितना, दूसरे का पैसा कितना। ओके, कुछ लोगों ने इसके डेफिनेशंस दिए हैं, सिंपल है, पढ़ लेता हूं मैं। मिस्टर R.H. वेसल, नॉट भांडी वाला वेसल, ओके, अपने घर का जो रहता है ना वो वाला नहीं। द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, ये बिजनेस को हमको 20 साल 30 साल चलाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा, उसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जॉन हैम्पटन, इन्होंने क्या बोला है, लेट्स रीड। अ फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेशन, रिश्ता बिटवीन द डेप्ट and equity securities that makes up the firm's financing of its assets। क्योंकि पहले ये पैसा लिया जाता है, डेप्ट मतलब कर्जे का पैसा, बोरो बाहर वालों से, इक्विटी मतलब अपने लोगों का पैसा, और वो पैसा लेकर एसेट खरीदा जाता है, बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदती है, डिलीवरी वैन खरीदते हैं। तो does the capital structure is composed of, what makes capital structure? own funds, borrowed fund। ओन फंड्स में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, और बोरोड फंड में क्या आता है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच आर द एग्जाम्पल। थोड़ा ज्यादा हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ओनर का पैसा, बाहर का पैसा, ओनर के पैसे में क्या क्या आता है और बाहर वाले के पैसे में क्या क्या आता है। तो थोड़ा अभी अपनी फैमिली ट्री हम इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा देखो, ओनर के पैसे में शेयर कैपिटल, बट इज एवरी शेयर कैपिटल ओनर्स मनी? नो। इक्विटी शेयर कैपिटल इज ओनर्स मनी। इक्विटी शेयर होल्डर, if you buy equity shares of a company, when you go to the stock exchange, the share market, and you say मेरे को ये कंपनी के, इन्फोसिस का, विप्रो का, रिलायंस का, जियो का शेयर्स खरीदना है, they will ask कि सर आपको कौन से शेयर्स खरीदने हैं, do you want to buy equity or do you want to buy preference? तो you would say मेरे को इक्विटी दो या मेरे को प्रेफरेंस दो। फर्क क्या है? देखो भाई, इक्विटी का फीचर अलग है, प्रेफरेंस का फीचर अलग है। इक्विटी का क्या प्रेफरेंस है, पढ़ लो। इट इज द बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। सबसे पहला पैसा, खरा पैसा, सच्चा पैसा किससे आता है? इक्विटी शेयर होल्डर से। बेसिक रोटी कपड़ा मकान, जब कंपनी की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा पहले आता है। आगे पढ़ो। इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच गेट डिविडेंड। व्हेन यू टेक इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, आप खरीदोगे तो आपको क्या मिलेगा रिटर्न में? डिविडेंड। हर साल 2021, 2022, 2023, कभी कभी तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है तो वो इंटरिम डिविडेंड देते हैं। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? वो साल के बीच में डिविडेंड देते हैं। नॉर्मली साल के एंड में डिविडेंड देते हैं, बट कभी कभी वो साल के बीच में, क्योंकि उनकी जेब में बहुत पैसा आता है। ओके, दे ओन द कंपनी। ये कंपनी के मालिक होते हैं, खरे मालिक। दे बेयर द अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ओनरशिप। प्लीज नोट, अगर गाड़ी आपकी है और आपने दोस्त को दिया और दोस्त ने ठोक दिया, तो देखो भाई, एक्चुअली डैमेज उसका नहीं हुआ है, आपका हुआ है, क्योंकि गाड़ी के मालिक आप हो। वेरी इंपॉर्टेंटली, दोस्त ने ठोक दिया तो वो तो मतलब वो भाग जाएगा वहां से, और पॉसिबल है वो अपना शक्ल भी दिखाएगा नहीं आपको। आप बोलोगे यार गाड़ी मेरी है, नाम पे तो मेरी ही है। ओके, अगर उसने किसी को ठोका है तो वो मेरे पे केस करेगा, मैं उल्टा, मेरे को कोर्ट कचहरी का घूमना, बिकॉज यू आर द ओनर, यू बेयर द रिस्क। हाँ, आप क्योंकि ओनर हो, आप वो गाड़ी अच्छे से चला के उसको एंजॉय भी कर सकते हो। मैं यहाँ से पूना गया, मैं यहाँ से गोवा गया, क्या मज़ा आया मेरे को हाईवे पे। हाँ, गाड़ी आपकी है, मालिक आप हो, मज़ा भी आपको आएगा, बट अगर नुकसान होता है भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। तो वैसा इक्विटी शेयर होल्डर का चक्कर है कि अगर कंपनी पैसा कमाएगी तो मुझको डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा कमाएगी तो मेरे को डबल डिविडेंड मिलेगा, नहीं कमाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आप मालिक हो ना,
तो फिर ऑटोमेटिकली आपको कभी खुशी कभी गम दोनों होने वाला है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर हम खरीदे तो क्या फर्क है? देखो, अगर डिविडेंड जब देना पड़ता है ना, तो कंपनीज हैव टू गिव डिविडेंड टू कीप देयर शेयर होल्डर्स हैप्पी। ओके, सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है क्योंकि उसका नाम है प्रेफरेंस, मुझे पहले। एंड सो इफ आई हैव गॉट 10 रुपीज, 10 रुपया है मेरे पास, एंड मेरे सामने आर 2 स्टूडेंट्स, वन इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब उसके हाथ में प्रेफरेंस शेयर है, द अदर इज इक्विटी शेयर होल्डर। ये 10 में से सबसे पहले whom will I give dividend? प्रेफरेंस, बिकॉज उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंड देन सोचो, आई गिव 8 रुपीज, 8 तो बचा कितना? 2 रुपीज। आई विल गिव इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का मुंह, शक्ल थोड़ा हो जाएगा, बोलेगा अरे यू गेव हिम 8 फॉर मी ओनली 2। क्या करेंगे? ही वॉज प्रोमिस्ड ही विल बी पेड 8 रुपीज। बट थिंक अबाउट इट, टुडे 10, टुमारो इफ वी अर्न 20, तो 8 रुपया किसको? प्रेफरेंस वाले को। कितना बाकी है? थोड़ा गड़बड़ हो गया, 12 रुपीज, 12 रुपया इक्विटी मिलेगा। क्यों? इक्विटी इज द ओनर। नुकसान होगा उसको झेलना पड़ता है, मुनाफा होगा उसको एंजॉय करना पड़ता है। 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। थर्ड पैसा क्या है? अपना पैसा। जब पैसा पैसा बनाता है, पैसा पैसा खींचता है, उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। इट्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बिकॉज जब एक कंपनी एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, एक काम सक्सेसफुली, एक जॉब, एक कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट करती है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। क्या कंपनी बोलती अरे हमको प्रॉफिट हुआ, चल यार वीकेंड माथेरान जाएगी, महाबलेश्वर जाएगी, हम लोग तो पार्टी करेंगे? पार्टी नहीं। हाँ, पार्टी करते हैं, ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं होती है, बट पूरा पैसा नहीं उड़ाते। दे सेव सम मनी, बिकॉज वो भी अक्लमंद है, दे हैव गॉट नेसेसरी ब्रेन्स। दे नो कि भाई कल भी तो हमको ये कंपनी चलानी है, तो ये प्रॉफिट से ही हम चला पाएंगे। उसको कहते प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यू कैन सी अबाउट व्हाट डज रिटेन्ड अर्निंग्स मीन्स। मेरी कमाई, अर्निंग्स का मतलब कमाई जो मैंने बचा के रखा, उसको कहते हैं मुसीबत के समय में काम आता है। मैनी बाइक्स ना, उनका रिजर्व होता है। पेट्रोल टंकी भी होती है और रिजर्व होता है। जब पेट्रोल टंकी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर गाड़ी रिजर्व पे चलती है ताकि पेट्रोल पंप तक पहुंच सके। हाँ, तो वो जो रिजर्व है ना, वो ये रिटेन्ड अर्निंग है। इसको क्या कहते हैं? प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट था मैंने उसको खेत में डाला और प्लाउ किया। मैंने कुछ उसमें से आउटपुट भी बनाया, मैंने कुछ कल्टीवेट किया, बेचा, पर मैंने वापस भी अपनी जेब में रखा, पूरा स्पेंड नहीं किया। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अपने परिवार का पैसा। तो बाहर वाले के पैसे का क्या नाम है? बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब अपना नहीं है ना, दूसरे का है, लौटाना है। कीप दैट इन माइंड, लौटाना है। ओके, हाँ, तो बोरोड कैपिटल में कौन सी वेराइटी है? देखो, 2 वेराइटी आती है। एक होता है डिबेंचर्स, एक होता है टर्म लोन। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? इट्स अ लोन। व्हेन अ कंपनी वांट्स मनी, दे कैन सेल सम पीपल जिनका नाम है डिबेंचर होल्डर। So they will come and they will say, I want to buy debenture. Yes sir, keep this. That may be 1 debenture, 2 debenture, 5 debenture, 10 debenture, 500 debenture, depends उसके पास कितना पैसा था और मेरे को कितना पैसा चाहिए। Okay? हाँ, when you become a debenture holder, the company on that debenture, अभी तो डिजिटल होता है, राइट्स, आपको 10 साल बाद पैसा मिलेगा, आपको 5 साल बाद पैसा मिलेगा, आपको हर साल इतना इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज आपने मुझे हेल्प किया है बाय गिविंग मी मनी। ओके, आई हैव बोरोड फ्रॉम यू, आई विल पे यू बैक, कन्फर्म्ड। सिमिलरली इफ अ कंपनी टेक्स अ टर्म लोन मतलब 5 साल का लोन, 8 साल का लोन, 4 साल का लोन, 3 साल का लोन फ्रॉम अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कंपनी को लौटाना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा, तो वो बन जाता है टर्म लोन। बोरोड है, अपना पैसा नहीं, अपने परिवार, अपना चाचा काका मामा का पैसा नहीं है,
कि जब चाहिए थोड़ा डिले करो, थोड़ा बाद में दो, नहीं, डिबेंचर वाले का पैसा देना ही है इंटरेस्ट के साथ, टर्म लोन वाले का पैसा देना ही है इंटरेस्ट के साथ। दीज आर द कंपोनेंट्स। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर की गाड़ी अगर चल रही है, कौन कौन बैठा है उस गाड़ी में? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, ये अपने लोगों का पैसा, और बाहर वाले के पैसे का नाम क्या है? डिबेंचर्स, टर्म लोन। ये मिलकर मुट्ठी भी बनता है, बट कैपिटल स्ट्रक्चर की गाड़ी भी बनती है और चलती है। टू शो यू वेरी क्विकली, इन अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आपको नॉर्मली जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो लाइबिलिटी साइड पे नजर आएगा। सो इफ यू लुक एट दिस, राइट अबाउ इट सेज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 लाख, मतलब इक्विटी का पैसा 1 लाख। 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड 5 लाख, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा 5 लाख, तो 1 लाख प्लस 5 लाख 6 लाख। दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर अभी तक। रिजर्व एंड सरप्लस, व्हाट इज सरप्लस? जो पैसा बचा के रखा। हाँ, तो ये रिटेन्ड अर्निंग है माय डियर, दिस इज रिटेन्ड अर्निंग। ओके, 50,000, सो 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 50,000। अच्छा, टोटल 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 कैपिटल स्ट्रक्चर का मैं टोटल कर रहा हूं। लाइबिलिटीज में क्या है? डिबेंचर्स 1 लाख। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर होल्डर से मैंने बोरो किया, हाँ, तो ये भी तो कैपिटल स्ट्रक्चर का है। यस। व्हाट अबाउट क्रेडिटर एंड बिल पेएबल? दे आर नॉट अ पार्ट, दे आर समथिंग कॉल्ड एज करंट लाइबिलिटी। ओके, दे आर नॉट। कैपिटल स्ट्रक्चर इज लॉन्ग टर्म, जो पैसा आपको लंबे समय तक मिलता है, तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, एंड डिबेंचर्स और टर्म लोन। सो टू फाइंड कैपिटल स्ट्रक्चर इन दिस बैलेंस शीट तुम क्या ऐड करोगे? यू डोंट लुक एट सर बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, डेटर भी, इन्वेंटरी भी, अरे बाबा वो मत देखो, एसेट को देखो ही मत। कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढना है तो लाइबिलिटी देखो, और जितने पॉइंट मैंने बताए उतने ही, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज डन। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिबेंचर्स, इट कम्स टू 7,50,000. That is the capital structure, and in that there is a mix, security mix. अपना पैसा कितना है उसके अंदर आएगा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, और डिबेंचर है बाहर वालों का पैसा। तो इस तरह से इसका सेव पूरी बना है, इस तरह से इस कंपनी का पानीपुरी बना है, और उस तरह का टेस्ट उनको आता है। दैट इज कॉल्ड एज द सिक्योरिटी मिक्स। These were everything that I had to talk to you and convey to you concerning कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पे नॉर्मली एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट येस ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ वहाँ पे कहाँ ना कहाँ पे एक क्वेश्चन घुस के ज़रूर आ जाता है। होपफुली जितने मुद्दे मैंने बताए वो आपको समझ में आ गए हैं। अगर आ गए हैं तो आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों तक इस चैनल के और इस चैनल के कंटेंट की और लेक्चर्स की जानकारी प्लीज़ आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट का, इस चैनल के लिए एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया, मीडियम कौन है? यू स्टूडेंट्स, nobody else. I can't go on the road and highway and take a big bhopu and shout, this is my channel, this is what I'm teaching. I can do that, but ज़्यादा लोग को सुनाई नहीं देगा, गाड़ियाँ ऐसे वैसे ही चली जाएगी। You are my best bet and you are my best way to take the news of this channel to more and more people. Please do that. It would be a mighty help to the growth of this particular channel. अपना ख्याल रखिए। अगर कुछ आपको कहना है हमें तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। टिल द टाइम वी मीट अगेन, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, बोलते हैं ना। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स, टेक केयर ऑफ योर लवली लवली फैमिली मेम्बर्स। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, अलविदा।